Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेस इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 1 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी लेसन 1 एंड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study lesson 1, which is an introduction to psychology. So let's start. As human beings, our curiosity drives us to know the reasons behind various events happening around us. Whenever we meet somebody or see someone doing something, we immediately try to understand as to why this person is doing this kind of activity. Similarly, we often try to understand our own experiences and behaviors in different situations. The eagerness and curiosity guide us to think as to how people are different from each other in terms of their intellect, aptitude, and temperament. Why do they become happy or sad? How do they become friendly or develop antagonistic relationships? How do some people learn anything quickly while others take relatively more time? The answer to all these questions may be given by a novice as well as a person who has learned psychology. The answer of the novice can be guided by common sense, but a psychologist can study the reasons behind such activities in a systematic way and can provide scientific answers to these questions, which can be tested time and again. In this lesson, we will try to understand the nature and scope of psychology in detail. हम लोग मानव है और हमारे अंदर हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती है कि हम लोग के आसपास में जितने भी इवेंट्स होते रहते हैं उनके बारे में जानना। जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर किसी को देखते हैं तो हम लोग उसे तुरंत समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सन है वो इस काइंड का एक्टिविटी क्यों कर रहा है। और कभी कभी हम लोग ये भी सोचने की कोशिश करते हैं, कभी अपने एक्सपीरियंसेस को भी वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में जो अलग अलग पर्सन है उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। ये हमारा जो एगरनेस है और हमारा जो क्यूरियोसिटी है कि कैसे जो लोग हैं एक दूसरे से अलग बिहेव करते, उनकी जो बुद्धि है वो अलग होती है दूसरे से, उनका जो योग्यता होता है एप्टीट्यूड वो भी अलग होता है, यहाँ तक कि उनके टेम्परामेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। क्यों लोग खुश हो जाते हैं किसी बात से और किसी बात से दुखी हो जाते हैं। कैसे कुछ जो लोग होते हैं वो एक अच्छा सा फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं और किस तरह से जो कोई लोग होते हैं वो एंटागोनिस्टिक इट मीन्स विरोधी स्वभाव डेवलप कर लेते हैं किसी के प्रति। कोई लोग कैसे कुछ चीज़ों को सीखने में बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ लोग उस चीज़ सेम चीज़ को सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास इसका आंसर हम लोगों को या तो नोविस जो कि नौसिखिया है वो भी दे सकते हैं या फिर जो साइकोलॉजी को जिन्होंने पढ़ा है वो भी बता सकते हैं। जो नोविस का आंसर है वो सेंस के थ्रू बताया गया, लेकिन एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसके पीछे जो भी रीजंस छिपे होते हैं उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं इस एक्टिविटीज़ के ऊपर। उसके बाद वो उसके पीछे के साइंटिफिक आंसर्स को भी बताते हैं और जो जिसे उन्होंने टेस्ट भी किया होता है। और इस लेसन में हम लोग नेचर और स्कोप पढ़ेंगे डिटेल से साइकोलॉजी के। Yes, nature of psychology and its definition. In simple words, psychology is a systematic and scientific study of mental processes, experiences, and behaviors, both overt and covert. The word psychology has its origin in two Greek words, psyche and logos. The word psyche in Greek language refers to spirit or soul, and the word logos refers to discourse or study. During earlier times, it was considered as a discipline which deals with the study of soul.
In India, the study of such questions was the main concern during Vedic and Upanishadic period. Various aspects of mental processes were analyzed. Subsequently, the schools of Yoga, Samakya, Vedanta, Nyaya, Buddhism, and Jainism provided detailed accounts of mind, mental processes, and methods to control mind. In modern period, it started at Calcutta University in 1916 with establishment of the Department of Psychology. देन जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस का, जो भी उसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं और बिहेवियर्स का. इसमें ओवर्ट एंड कोवर्ट, ओवर्ट मीन्स अपरोक्ष एंड कोवर्ट मीन्स प्रक्षण, इन दोनों को मिला करके इसमें स्टडी किया जाता है. ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है. इसमें दो वर्ड छिपे हुए हैं, साइकी एंड लोगोस. साइकी जो कि ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्पिरिट और सोल विच मीन्स आत्मा, एंड वर्ड लोगोस रिफर्स टू डिस्कोर्स और स्टडी. लोगोस मीन्स उसके बारे में अध्ययन करना. तो प्राचीन समय में क्या होता था कि एक ऐसा डिसिप्लिन था जो कि आत्मा के बारे में अध्ययन करता था. इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं वैदिक उपनिषदिक पीरियड में. बहुत सारे हम लोग जब एस्पेक्ट्स देखेंगे मेंटल प्रोसेसेस का, उस टाइम में एनालाइज किया जाता था. और ऐसे कई सारे स्कूल्स थे, योगा, समाख्या, वेदांत, न्याय, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, जिन्होंने एक डिटेल स्टडी प्रोवाइड किया था माइंड मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर कि किस प्रकार से, किस मेथड से हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. मॉडर्न पीरियड में भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1916 में एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई थी. In the Western world, the formal beginning of psychology as an independent discipline goes back to 1879 when Wilhelm Wundt established the first experimental laboratory at the University of Leipzig in Germany. Since then, the growth of psychology has covered a long journey. Today, it is one of the very popular subjects among social sciences. It studies all the shades of experiences, mental processes, and behaviors. A comprehensive analysis of all these aspects provides a scientific understanding of human nature. In the following sections, we will try to understand all the components which collectively define psychology. तो हम लोग अगर पश्चिमी सभ्यता का बात करें या पश्चिमी दुनिया की बात करें, तो इसका जो साइकोलॉजी है, इसका जो फॉर्मल शुरुआत हुआ था वो एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में हुआ था 1879 में, जब विलेम वुडेंट ने स्थापना किया था प्रथम प्रयोगशाला, एक लैबोरेटरी को यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी में. उसके बाद साइकोलॉजी धीरे धीरे करके ग्रोथ करता गया और इसने एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी को कवर किया. आज हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सोशल साइंसेस में, तो इसमें भी हम लोग एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स के बारे में स्टडी ज़रूर करते हैं. एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं जितने भी एस्पेक्ट्स है एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का ह्यूमन नेचर के बारे में, उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. हम लोग जो नीचे सेक्शंस दिए गए हैं उसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो साइकोलॉजी है वो क्या को, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो साइकोलॉजी को कैसे एक प्रॉपर वे में डिफाइन कर रहा है. स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस. Psychologists study a variety of human experiences which are mainly personal or private in nature. They may range from experiences of dream, conscious experiences at different stages of life, and experiences when the consciousness is altered through mediation or use of psychedelic drugs. The study of such experiences helps the psychologist to understand the personal world of the individual. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के जो भी वैरायटी होते हैं उसको वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में वो अध्ययन करते हैं, मेनली पर्सनल और प्राइवेट नेचर में. वो एक्सपीरियंसेस करते हैं उनके ड्रीम के बारे में, उनके कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ और एक्सपीरियंस को. जब हम लोग कॉन्शियस होते हैं, हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं या फिर जब लोग
साइकेडेलिक ड्रग्स यूज करते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस के स्टडी को जो साइकोलॉजिस्ट है उससे वो क्या समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिविजुअल का जो पर्सनल वर्ल्ड है वो किस तरह से उसने अपना क्रिएट करके रखा है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उनका खुद का एक पर्सनल वर्ल्ड होता है और उन्होंने उसमें वही चीज़ को डाला हुआ होता है जो उनको अच्छा लगता है या फिर जिससे वो जुड़ना चाहते हैं। Study of mental processes. Psychology, as the study of mental processes, tries to investigate the activities happening in the brain which are primarily non psychological in nature. These mental processes include perception, learning, remembering, and thinking. These are internal mental activities which are not directly observed but inferred from the behavioral activities of the person. For example, we can say that somebody is thinking if he or she displays certain activities related to finding solution to a mathematical problem assigned to him or her. जो साइकोलॉजी है वो मेंटल प्रोसेसेस के स्टडी के बारे में है। इसमें से वो साइकोलॉजिस्ट क्या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, वैसे एक्टिविटीज़ को जो ह्यूमन के ब्रेन में हो रही होती है, जो प्राइमरली नॉन साइकोलॉजिकल इन नेचर होती है। ये जो मेंटल प्रोसेसेस है इसमें परसेप्शंस इंक्लूड होता है। परसेप्शन मीन्स अनुभूति, उसमें उनके लर्निंग कैपेसिटी, रिमेम्बरिंग और थिंकिंग कैपेसिटी जुड़ी हुई होती है। ये जो इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे हम लोग बिहेवियरल एक्टिविटीज़ से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी पर्सन के। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जब कह सकते हैं कि जो कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल है जो कि किसी के बारे में सोच रहा है तो वो उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ को करेगा या तो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को असाइन करेगा, उसमें उसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा या फिर उस जिसके बारे में वो सोच रहा है उससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ करेगा। Study of behavior. The range of behavior studied in psychology is very broad. It includes simple reflexes, example eye blinking, common response patterns such as talking to friends, verbal reports about feelings, and internal states and complex behaviors such as handling computers, playing piano, and addressing a crowd. These behaviors are either observed directly through naked eyes or are measured through instruments. They are generally exhibited verbally or non-verbally. Example, facial expression. When an individual reacts to a stimulus in a given situation. Thus, in psychology, the main unit of investigation is the individual human being and his or her experiences, mental processes and behaviors. तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर को कवर कर रहा है। ये जो बिहेवियर से साइकोलॉजी का, इसमें बहुत ही ब्रॉड रीजन है। इसमें सिंपली हम लोग देखेंगे आइज ब्लिंकिंग, कॉमन रिस्पॉन्स पैटर्न्स, जब कोई किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर इसमें अपने फीलिंग्स को किस तरह से वर्बली वो रिपोर्ट कर रहे हो दूसरे को, या फिर उनके इंटरनल स्टेट्स को, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को, जैसे कि किस तरह से कंप्यूटर को हैंडल किया जा सकता है, पियानो को प्ले किया जा सकता है, या फिर किस तरह से एक भीड़ को एड्रेस किया जा सकता है। ये जो बिहेवियर्स है या तो हम लोग डायरेक्टली थ्रू नेक्ड आइज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसे इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर कर सकते हैं। इसमें से वर्बली और नॉन वर्बली दोनों होते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन। जब कोई इंडिविजुअल किसी गिवन सिचुएशन में किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिएक्ट करता है तो हम लोग उससे भी देख सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी एक मेन यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के बारे में या फिर उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस और उसके बिहेवियर्स के बारे में। Here is figure 1.1 which shows aspects of the subject matter of psychology which are experience, behavior and mental processes. Now here is your in-text questions 1.1. Try to solve all these questions. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।